Hello friends, today we are going to start up Unit 2, Chapter 2 of Class 7 Physics, which is Force and Pressure, Motion. Fine, in this we are going to cover the different units. Out of this, first unit is rest and motion, kinds of motion. Rest क्या होता है, motion क्या होता है, कितने kinds का होता है, all these things we are going to discuss in this chapter. I will cover the full unit, full topic related to this. So stay tuned. So let's start. If you like the video, please do subscribe to my channel also. So what is rest and what is motion? First thing that I want to tell you, whatever you are watching around, whether it is at rest or motion, these two terms are relative. अब वो रिलेटिव का क्या मतलब हो, तो डिपेंड करता है कि आपकी सराउंडिंग में दूसरी चीज़ें क्या कर रही हैं, वो रेस्ट पे हैं या मोशन पे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बस में बैठे हो, बस में बैठने के बाद जो आपके फेलो पैसेंजर्स हैं, आपको लगता है कि वो रेस्ट में हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं, फाइन. लेकिन अगर आप खिड़की से बाहर देखोगे ट्रीज़ को या दूसरे व्हीकल्स को, यू विल फाइंड आउट दैट दे आर मूविंग. Even a person sitting on the bench near the road, you will find that the person is moving. तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो पेड़ हैं या जो कोई आदमी आराम से टेबल पर या बेंच पर बैठा है वो भी मूव कर रहा है when you are sitting inside a bus? This is because of the concept of rest and motion. So अब रेस्ट क्या होता है? When the position of a body विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज. एक बॉडी है, उसकी पोजीशन जो है अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अगर चेंज नहीं होती हैं, तो उस केस में वो जो है दैट विल बी कॉल्ड एज रेस्ट. फाइन. जैसे पर्सन है, वो बस में बैठा है, तो उसकी जो पोजीशन, जो उसके पैसेंजर्स हैं उसके वहीं बस में, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, सो दैट मीन्स ही इज़ फाइंडिंग देम रेस्ट. फाइन. लेकिन अगर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन चेंज होती है, फाइन, सो देन इट विल बी कॉल्ड एज मोशन. सो दोनों के दोनों जो रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव है. नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मोशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज मोशन. नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन दिस इज translatory motion. Now imagine there is a body, maybe a car, maybe a train. If all the parts of that are moving in same direction, all the parts or particles of that, if car is there, all the parts are moving in the same direction, then it is called as translatory motion. The motion in which all the particles of the body move through the same direction in the same time. एक टाइम पर सभी पार्ट्स, उसके सभी पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, then it will be your translatory motion. Like a car or a train moving, if a ball is rolling, a girl is sliding, all these are the examples of translatory motion. Now next thing now this translatory motion can be rectilinear motion or curvilinear. As the name suggests, rectilinear matlab in a line. If when a body moves along a straight line, then the motion is described as rectilinear motion. अगर एक straight line में जाती है, then it is rectilinear. For example, moving train, moving car, और free falling stone. जब stone एक ऊपर से नीचे गिरता है, then also it goes in a straight line. Then curvilinear, when the motion is in the form of curve. Like if a person throws a ball, if there is a person, if this is a person and he is throwing a ball, so it will take a curvilinear path. Fine. Then come rotatory motion, a motion in which body moves around a fixed axis without changing its position. एक fixed axis है, जैसे एक axis ये fixed है, यहाँ पर body fix है और उसी के चारों तरफ वो body जो है वो मूव करती है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक स्पिनिंग व्हील, जो चरखे का व्हील होता है वो बीच में से फिक्स होता है और वहीं पर वो उसके चारों तरफ मूव करता है. स्पिनिंग टॉप और पॉटर्स व्हील, जो घड़ा बनाता है पॉटर, उसका व्हील जो होता है वो भी बीच में से फिक्स होता है और उसी के चारों तरफ वो मूव करता है. अ फैन इज ऑल्सो इज फिक्स्ड इन द फ्रॉम द सेंटर. So that is rotatory motion in which your body is moving around a fixed axis. नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी मोशन. सर्कुलेटरी मोशन में क्या होता है, जो एक्सिस है वो फिक्स नहीं है. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, बट इन दिस ऑल्सो द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ
fixed path, but it's not fixed as in case of rotatory motion. What is the example of this? Like if this earth is moving around the sun, in that the earth takes a fixed path. Path हमेशा fix होता है, but it is not attached to it. Its axis is not fixed. Fine. So this is your circulatory motion. नेक्स्ट इज योर ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन जैसे आपको पता ही है, टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हो या टू एंड फ्रो हो मोशन, दैट इज कॉल्ड योर ऑसिलेटरी मोशन. लाइक मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम और अ बॉय टेकिंग द स्विंग्स, झूले ले रहा है जब कोई भी, सो दैट इज योर ऑसिलेटरी मोशन. फाइन. देन कम्स योर वाइब्रेटरी मोशन. अब से वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन मोर और लेस सेम होती हैं, बट इसमें वाइब्रेशंस में क्या होता है, जो आपकी टू एंड फ्रो मोशन होती है दैट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट. जैसे आप किसी तार को खींचते हो तो वो फटाफट से मूव होता है, जल्दी जल्दी मूव होता है. फाइन. जैसे आप सितार की या आपने ड्रम को बीट किया, सितार को, या निडल की मूवमेंट है, दैट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट विच मेक्स द वाइब्रेशंस. फाइन. सो आपकी वाइब्रेटरी मोशन हो गई. दैट इज ऑसिलेटरी मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेरी फास्ट और रैपिडली, टू एंड फ्रो मोशन. देन लास्ट वन और द नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मतलब जो अपने आप को रिपीट कर रही है आफ्टर सर्टन इंटरवल. कोई भी मोशन अगर कुछ इंटरवल के बाद कुछ को सेम मोशन को रिपीट कर रही है, दैट इज योर पीरियोडिक मोशन. योर मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज ऑल्सो. सो रिपीटेटिव मोशन इज पीरियोडिक मोशन. लाइक आपकी जो मोटर कार है उसका पिस्टन मूव करता है इंजन का, या पेंडुलम मूव करता है, स्विंग मशीन, ये सब जो है पीरियोडिक मोशन है जो कुछ टाइम के बाद खुद को रिपीट करती हैं. देन कम्स नॉन पीरियोडिक मोशन. नॉन मतलब नहीं, पीरियोडिक मतलब जो रिपीट नहीं करती हैं. सो ऐसी मोशन जो खुद को रिपीट नहीं करती है, लाइक अ पर्सन अप्लाइंग द ब्रेक इन द ट्रैफिक में जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, दैट इज योर नॉन पीरियोडिक मोशन. फाइन. वो कभी 2 मिनट के बाद, कभी 1 मिनट के बाद, कभी भी ब्रेक अप्लाई हो जाती है. देन कम्स रैंडम मोशन. द मोशन इन विच पाथ इज नॉट डिफाइंड. इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, लाइक अ मॉस्किटो flying, or when you fill the air inside a balloon and you leave it, it can move in any other direction. That is your random motion. Then comes uniform motion. Uniform मतलब एक जैसी, यानी कि equal distance in equal interval of time. 2 मिनट अगर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया है in 1 सेकेंड में, so this is going to be fixed. So equal distance in equal interval of time is uniform motion. And the next one is non-uniform, in which unequal distance is being covered in equal amount of time, in equal period of time, like 3 meter in 1 second, then 2 meter in 1 second, then 5 meter in 1 second. So distance अलग अलग है time, fixed time period में, that is non-uniform motion. So these are the different kind of motions. If you haven't understood, please go back and watch the video again. If you like the video, please do subscribe to my channel and hit the bell button.